Hi everyone, good evening. Welcome to Mrs. Diva. Welcome to the Facebook page of Mrs. Diva and Facebook group of Mrs. Diva and YouTube channel of Mrs. Diva also. So this is my favorite episode. We are here for the podcast and I am with everybody's favorite, मेरी भी favorite, आपकी भी favorite, सभी की favorite राखी जैन. Thank you. Let's say hi to everybody. राखी पहले आप हाय बोलिए. सब वेट कर रहे हैं राखी की. I'm not able to see anybody actually, but I welcome you all to this podcast. Wonderful. So I think we already have Priyanka with us. Hi Priyanka, how are you doing? Thank you for joining. We have Surbhi also with us. So guys, you guys can see that we are live from StreamYard. So at times we are going to miss out on some names because StreamYard कभी-कभी थोड़ा सा names में गड़बड़ कर जाता है. Hi Meena, thank you for joining in. Thank you so much guys. Please, as usual, keep tagging everybody so that they can. Hi Shreya, thank you so much. So I'm just Hello, going to take a everyone. moment. Rakhi, आप इतने सबको hello बोलो. I just want to Hello, start playing this everyone. on the mobile also, so that we don't miss any comments. Actually, I'm not able to see any names and all that. Oh, okay. So this is I did not know this thing that the guests will not be able to see the names of the people who are commenting. Yes. Okay. Okay. So we have Shruti also with us. Hi, Shruti. Hi, Kiran. So that's okay, Rakhi. I will be your eyes today. So मैं आपकी तरफ से hello बोल देती हूँ सबको. We have Priyanka, Shruti, Kiran. On Facebook, अगर मैं Facebook पे जाके देख सकती हूँ शायद. Yes, definitely. You'll have to open up Mrs. Diva's Facebook page and you will be able to see the live. But you will have to zero down your volume. Otherwise, वो interfere करेगा. Echo आएगी हमें. Okay. Hi, Shikha. Hi, Aruna ji. Thank you. Hi, Arvina. Thank you for joining in. Hey, Preeti. How are you doing? Hi, Hello, Nita ji. everyone. Hello, everyone. We welcome Thank you. you. See, I told you, Rakhi सबकी favorite है. Wonderful. मुझे लगता है मिसेस दिव्या में हर कोई हर किसी का फेवरेट है. Which is a good thing, wonderful thing, Yeah. right? हम लोग सब एक दूसरे के फेवरेट है. Great. Thank you so much. So I think Priyanka made a post today, something about what is your the blessings in for 2020. So I needed some time to write that down, but I think Priyanka, before I can write that down. Hi Nidhi, thank you for joining in. So I could not find time to write the answer to that post, but I really am thankful to 2020 for giving so many beautiful people to me. All of you are in my life because of 2020. Hi Pooja, thank you for joining in. Hi Sakshi, hi Lalita. Thank you so much guys. Aruna, I am having chamomile tea. I'm having chamomile tea. Aruna ने notice कर लिया. So I'm really thankful to 2020 for all of you, each one of you. आप सभी के लिए मैं बहुत thankful हूँ 2020 की वजह से ही. I know शायद this year has not been as kind to a lot of people, but I personally am very thankful कि आप लोग सब मुझे मिले हो, इसी साल में मिले हो और हमेशा मैं ये याद रखूंगी. I'm very thankful to God also कि ये साल ऐसा रहा कि आप सब मुझे मिले. एवरीबडी, प्रियंका को मैं पहले से जानती थी. कुछ ऐसे हैं जो कि पिछले साल से ही थे मेरे साथ, बट बहुत से ऐसे हैं जो कि इस साल मिले. सो थैंक यू सो मच 2020. आपकी वजह से हम लोग जुड़े हैं और हमें इतना अच्छा एक फैमिली मिली है एक्चुअली. थैंक यू. आप लोग ही फैमिली हो मेरी, आप ही लोगों से बनी है ये फैमिली. Wonderful. Okay, so let's do a quick introduction for Rakhi. So all of you know that Rakhi is an expert tarot card reader. Rakhi का live session होता है तो we get so many questions और कई बार तो लोग थोड़े गुस्सा भी हो जाते हैं. राखी ने हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं किया. So Rakhi is one of Mrs. Diva's expert tarot card reader. She's a highly decorated Vastu expert also.
all of us know about that. And she's also a numerology expert. I'm not sure हमने numerology का कोई शायद नहीं किया है, but I really wanted to put it out here that Rakhi is also a numerology expert. तो बहुत बहुत सारी चीजें आपने की हुई हैं, आई थिंक इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जो कि आप शायद जो भी काम आप नहीं कर रहे हो, बट देन यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप शायद ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपने बहुत सीखा हुआ है. हमने शायद एक बार वी वर टॉकिंग अबाउट जेम्स के भी आपने जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का भी आपने राइट. सो छोटा सा इंट्रोडक्शन राखी से ही जानते हैं कि क्या क्या आपने किया हुआ है. कुछ भी मिस मत कीजिएगा. वी वांट टू नो एवरीथिंग कि व्हाट ऑल कोर्सेज यू हैव डन, व्हाट ऑल डू यू नो. मैंने एक्चुअली मेरी शादी 12th के बाद ही हो गई थी, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन ही शादी के बाद की है. तो मेरी फैमिली बहुत हमेशा सपोर्टिव रही है, स्पेशली माय हस्बैंड, क्योंकि आपके अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद आपके इन-लॉज भी नहीं सपोर्ट करते आपको. तो 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन की. जब मेरा फर्स्ट बेबी आया उस समय मैं प्रेग्नेंट थी. मैंने सेकेंड ईयर का पेपर भी उसी टाइम दिया था, प्रेगनेंसी में ही. तो फिर जब बच्चे जब 3-4 साल के हो गए तो मेरे हस्बैंड खुद ज्वेलर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग करो, क्योंकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी थी. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ. तो फिर मैंने सबसे पहले ज्वेलरी डिजाइनिंग की, और झंडे वाला जो दिल्ली में फेमस है, ऑल ओवर इंडिया में फेमस इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने की. एंड आई स्टूड फर्स्ट इन माय बैच. तो उसके बाद फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग की मैंने बहुत टाइम तक, कुछ टाइम तक अपने हस्बैंड को हेल्प भी किया उसमें. फिर मेरे को सेकंड बेबी मेरा बेटा हुआ, फिर मैंने उसको छोड़ दिया. फिर 4-5 साल तक मैं ऐसी कुछ ना कुछ करती रही. मतलब कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉप भी जाती थी, उनकी हेल्प भी करती थी. बच्चे छोटे थे, बट मतलब मैं मैनेज किया सब कुछ थोड़ा थोड़ा. कुछ मेरे इन-लॉज ने भी सपोर्ट किया मुझे. फिर हमने एक प्ले स्कूल भी खोला. जब मेरे बच्चे थोड़े 8-10 साल के हो गए तो मुझे लगा बच्चे 10 साल के हो गए तो बड़े हो जाते हैं. तो इस मामले में ना मेरे बच्चों ने भी मुझे कभी परेशान नहीं किया. और मुझे लगता है कि जब बॉयज होते हैं ना तो आप इतने वो नहीं होते, मतलब आपको गर्ल्स के लिए ज्यादा देख रेख करनी पड़ती है. दोनों बेटे थे तो आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तो परेशान नहीं किया. तो मेरी बहुत सारी चीजें मेरी बच्चों की वजह से भी मैं बहुत कुछ कर पाई हूँ. फिर हमने प्ले स्कूल खोला एक छोटा सा, तो उसमें मैं प्रिंसिपल थी उसका 1-2 साल. फिर कुछ वजह की वजह से हमने वो बंद करना पड़ा. उसके बाद बच्चे तो काफी मतलब ये 8-10 साल का प्रोसेस है. फिर बच्चे बड़े हो गए थे तो मेरे हस्बैंड ने, हमने एक स्वर की क्लास ली थी किसी के कहने पे. तो जब वो स्वर की क्लास ली तो वो जो मेरे जो सर थे डॉक्टर राजेंद्र जैन इंदौर के, वो स्वर एक्सपर्ट हैं, तो वो वास्तु की क्लासेस भी लेते हैं. तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुमने स्वर की ट्रेनिंग तो ले ली है, वास्तु का भी करके देखो. तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं. तो स्वर से ही मैंने वास्तु की ट्रेनिंग ली. फिर 2-3 साल मैंने वास्तु किया, उसकी ट्रेनिंग ली. वास्तु के साथ उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम वास्तु तो कर रही हो, उसके साथ साथ टैरो भी करो. मतलब ये कुछ भी चीजें मैंने अपने आप नहीं बोली, सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट, तुम ये कर रही हो साथ ये भी करो, तुम वास्तु कर रही हो तो टैरो करो, तो तुम्हारा दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाएगा. फिर मैंने टैरो करा, और फिर जब वास्तु से ही मेरा इंटरेस्ट बैठा क्लास की, चलो मैंने वास्तु किया. और इसी बीच, इन्हीं सालों के बीच मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी, जो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोला. तो उसमें मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखा, सोशल मीडिया ये सब, SEO भी किया, और कोरल, फोटोशॉप, ये सब मैंने इसी बीच मैंने सब सीखा. और फिलहाल अब एंड प्रोसेस मेरा वास्तु, टैरो एंड न्यूमरोलॉजी है. Wonderful, wonderful. So I think we should really thank Mr. Jain, है ना? हम लोग को we should really thank him. And I really feel that हम लोग ना बहुत at times husbands are in a very bad light. बहुत बार हम लोग ये सुनने में भी आता है. And we should really come up with more such stories जहाँ पे husbands have been so supportive. At least let us set more positive examples.
ऐसा थोड़े ना कि बुरे ही है। सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ रहा है। एग्जैक्टली, एंड बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, एंड आई थिंक ज्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स आगे आएंगे तो हो सकता है जो कि सपोर्टिव नहीं है वो भी शायद सपोर्टिव वाली कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाए ना, एनकरेज हो के। और ऐसा नहीं है कि मैंने घर भी नहीं संभाला, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन हमारी मेरा शुरू नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। सेपरेट किचन्स रही हैं, तो उसमें सब कुछ मतलब मैंने घर भी मैनेज किया, बच्चों को भी देखा, बच्चे स्कूल भी जाते थे, मेरे बच्चों ने कभी ट्यूशंस भी नहीं ली, तो वो स्कूल में ही सब कुछ उन्होंने, मैंने 5th 6th तक ही उनको पढ़ाया है, लेकिन सब कुछ हो गया, मतलब हस्बैंड की सपोर्ट से हुआ, बच्चों की सपोर्ट से हुआ, क्योंकि कहीं पे भी अगर वो सपोर्ट सिस्टम, अगर बच्चे नहीं सपोर्ट करते तो शायद मैं नहीं कर पाती, या हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर पाते तो शायद मैं नहीं कर पाती, या इन लॉज मेरे सपोर्ट नहीं कर पाते तो भी शायद मैं नहीं कर पाती। Absolutely, absolutely. That is also a very, very important point. Wonderful, 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 Rakhi. So you have actually a first question मेरा आपने answer कर ही दिया in a way. So now अब मैं एक my next question is it's a bit थोड़ा सा personal question मैं पूछना चाहूँगी आपसे. And this is, I think, this is important for all women. सभी हम सभी के लिए थोड़ा important question है. What were your initial fears? You know, एक इतनी young age में इतनी young लड़की शादी होना, and education भी आपका शायद पूरा नहीं हुआ था, आपने बताया that you took your 12th class examinations after you got married. So did you deal with some of, you know, अपनी कोई insecurities थी जो आपके मन में आई, या societal stigmas कुछ उसके बाद आपने face किए, कुछ ऐसी situations आई आपके साथ, आपने फेस की? कह सकते हैं मैं बहुत लकी रही हूँ, मतलब मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, और जो मैं मेरठ में थी, मेरी जो फैमिली थी जॉइंट फैमिली थी, पर वहां पे मुझे बहुत दबा ढका एटमॉस्फेयर मिला, और मैं मेरे ससुराल में आई हूँ, मुझे बहुत ओपन माइंडेड पीपल मिले। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कभी भी मना नहीं किया, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती रही। अब तो वो नहीं रही, मई में वो एक्सपायर हो गई, पर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली में यही करती हूँ कि मैंने जितना अपने बचपन में नहीं सीखा, मैंने सब कुछ अपनी शादी के बाद सीखा। Lovely, lovely, lovely. Before married, I am like a normal girl. And after marriage, I can say कि I am a educated girl, जिसे कह सकते हैं. Lovely, lovely. This is a true example of an Indian family. I think this is the true example. Whenever we you know, हम लोग कभी conversation करते हैं, बाहर के जो friends हैं, peers हैं, उनसे, they at times have a different you know, impression of Indian family, but I feel ये एक शायद true impression होता है Indian families का, that, you know, be supportive towards towards your daughter-in-laws also, because उसमें भी daughter है ना, in-law बाद में लगा है, पहले daughter आया है ना, नहीं तो in-law daughter होता ना, daughter-in-law है. Wonderful, wonderful, and I'm very, very happy. So कोई अपना आपको कभी लगा, you know, did you felt कभी अपनी तरफ से कोई fears, कभी कुछ face किया हो? नहीं, वो pretty confident. हाँ, मतलब वो एक्चुअली सपोर्ट ही ऐसा रहा कि डर कभी लगा ही, इस मामले में कभी डर नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी मेरे, मतलब नहीं, कभी नहीं लगा। मतलब कभी मदर इन लॉ ने सपोर्ट किया, तो कभी हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो, तो वो फियर नहीं था। इनफैक्ट बस यही था, अपने आप को ग्रो कैसे कर पाना है वो मुझे नहीं पता था, वो मैंने आपसे सीखा। बट जो मैंने चीजें सीखी जिंदगी में, वो मैंने विदाउट फियरलेस सीखा। Lovely, lovely, lovely. Okay, so this brings me to my next question, and I feel that this would be an important question for you. What is your family's, and especially your husband's and your kids' reaction now when they see you so successful, and when they see so many women following your work, following you, and praising you, you know, looking up to you? Because I personally know that there are a lot of women now who look up to you, who look up to your work, and who praise you. So how
how do they feel now? What is the family's reaction now? What do your sons feel now? अभी अभी कैसा कैसा वो लगता है घर में? अगर मैं हस्बैंड की बात करूं या मैं अपने इन लॉज की बात करूं या बच्चों को बात करूं, तो मुझे इतना देख के खुश होते हैं ना कि ऑनलाइन आते हो तो हमेशा मुझे एक वो होते हैं ना कि क्रिटिक वो होते हैं। मेरे हस्बैंड बोलेंगे तो अपनी वॉइस को ठीक करो, थोड़ा सॉफ्ट रहा करो, इतना लाउड मत हुआ करो, और इस तरह से मत बोला करो, बी कर्टियस रहा करो, ऐसे मत बोला करो ये मैंने किया ये मैंने किया। गॉड को थैंक किया करो गॉड की वजह से। तो ही कि नहीं तुम कर रही हो बहुत अच्छी बात है, पर अपने में वो जो ईगो जैसी चीज कभी भी मत लेके आना। ऑलवेज थैंक गॉड कि हाँ तुम्हें जो मिला और तुम जो कुछ भी कर रही हो वो गॉड की वजह से मिला। और बच्चे तो मेरी सपोर्ट सिस्टम है ही, तो मैं अपना जो भी ऑनलाइन का वो करती हूँ, तो मैं खासकर अपने छोटे बेटे, क्योंकि बड़ा बेटा तो शॉप पे पापा के साथ जाता है, तो बड़े बेटे छोटे से ही कहती हूँ बेटा मेरा सेटअप कर दे, मेरी लाइट लगा दे, या कुछ है कोई भी मेरे को कंटेंट लिखना होता है तो मैं उसी को दिखाती हूँ, तो वही कहता है नहीं मम्मी ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं लिखना, आप क्या लिख रही हो। तो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे हर जगह से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। Wonderful. So, and I'm pretty sure that they would be very proud of you also, you know. We हम लोगों को इतना, and I'm pretty sure Mrs. Diva में सभी बहुत proud feel करते हैं, and especially रेशम, I think रेशम ने तो पूरा पोस्ट ही बनाया था, और आई गेस फैमिली में भी सभी बहुत प्राउड फील करते होंगे। एक्चुअली क्या होता है कि फैमिली वाले ना ऐसे बोलते नहीं है कि राखी आई एम प्राउड ऑफ यू, पर हाँ वो ये बोलते हैं कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो, ठीक है ये है। Yeah, wonderful, wonderful. तो ये लगता है कि राखी को ज्यादा बोल दिया तो वो सर पे चढ़ जाएगी, तो उसको लेवल you are one of the most humble people I know personally, and trust me, I get to know a lot of people. तो मैं seriously मैं ऐसे नहीं कहती हूँ that you know you are one of the most favorite people of the group, honestly, and this is apart from the fact that you have been so supportive throughout for everybody. I'm not talking about last few weeks because of course everybody knows that you have been busy with the family, but everyone knows how supportive, extra supportive you have been towards everybody in the group. सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ कुछ जो हमारे ऑफ कोर्स कुछ मेंबर्स हैं जो कि ज्यादा आगे रहते हैं, सभी उनके लिए ही नहीं, आप सभी को बहुत सपोर्ट करते हो, and everybody feels very very happy about it, and we recognize the fact that we are so blessed, we're really so blessed to have you in the group, and as a member you know you're like a constant. हमें पता है आप हो, सुरभि हो गई, शिखा हो गई, हमें पता है विनीशा हो गई, वी अंडरस्टैंड कि ये लोग ना कांस्टेंट हैं, हमारे साथ हैं, खड़े रहेंगे, पता है कि ये एक सपोर्ट है, सभी को चाहिए होता है सपोर्ट। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी चाहिए, सभी को चाहिए ये सपोर्ट जो होती है, तो ये लोग ये वो आप उनमें से हो, हमारे लिए वो जो पिलर्स होते हैं उनमें से हो, एंड रियली वी आर रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू अबाउट इट। ओके, तो अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं डेफिनेटली मैं सभी से पूछती हूँ, एंड अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू आल्सो, हाउ डिड बिजनेस कोचिंग फ्रॉम मी help you grow in terms of पहले तो business definitely क्योंकि वही हमारा main motive था, and then in your entrepreneurial journey उसकी भी मैं इसके बाद बात करूंगी। How did you think that this thing has helped you grow? जो सबसे बड़ी मेरे को जो हेल्प मिली वो ये थी कि मेरे को एक फेयर था, ये डर था, या मैं हिचकती थी लाइव आने के लिए, और ये आस्था जैन बहुत अच्छे से समझती हैं कि मेरे को 2-3 महीने लगे समझने में। मुझे लगता था नहीं मैं नहीं आ सकती, मुझे नहीं आना चाहिए, नहीं आ सकती तो शायद अब दूसरी चीज हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए कि सब क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे इन-लॉज क्या सोचेंगे, मुझे उनकी रेपुटेशन नहीं खराब करनी है, और मुझे अपना फेस नहीं दिखाना था एक्चुअली लाइफ में। बट आपने ही मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आ सकते हो और कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, और अब इतनी ऐसी कोशिश हो गई है कि लाइक आई एम फेयरलेस कि मैं आ सकती हूँ। Wonderful, wonderful. This is
मैं फेयर जो आपने निकाल दिया मेरे में से, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही है कि नाउ आई एम, मतलब मैं अब कहीं पे भी लाइव जा सकती हूँ, मैं और ग्रुप्स में भी लाइव गई हूँ, मैं और लोगों के पेजेस पे भी लाइव गई हूँ, मैं अपने पेजेस पे भी लाइव जाती हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मिसेस दीवा से मैंने ये भी सीखा कि हमें कैसे अपने से पहले दूसरों की हेल्प करनी है, और ये आपने ही हमें सिखाया। हम मतलब मेरे को लगता है मिसेस दीवा में जितनी भी लेडीज हैं वो सब इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोगों को इस तरह से कभी भी ना तो ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ना हम लोग का थॉट प्रोसेस होता है वहां, हमेशा हम अपने लिए सोचते हैं। लेकिन मिसेस दीवा में हमें ये पता चला कि हमें अपने साथ साथ दूसरों को लेके चलना है, हमें आगे नहीं दौड़ना, हमें साथ साथ चलना है, और शायद साथ साथ चलेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और सब आगे बढ़ सकते हैं, और ये मिसेस दीवा में होता है, लाइव एग्जाम्पल होते हैं इस चीज के लिए। तो ये तो सबसे, और ये सभी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसमें सभी लेडीज बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, अपने आप को लेके आ रही हैं बाहर, अपनी जो फीलिंग्स हैं, चाहे वो हैप्पीनेस की है या सॉरोज की है या फियर भी है उनके में, बहुत ओपनली और बहुत अच्छे से कर रही हैं, और सब लेडीज आपस में बहुत एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। Yes, और absolutely. तो थैंक्स टू यू कि आपने ये फैमिली एक बनाई है। Thanks to all of you. In fact, I was about to make a post today also, and I think I'm going to do it after this. There's one very small incident, and I did not even know about it, and it's just this thing कि मैं हर जगह शायद मैं भी present नहीं हो पाती हूँ, मुझे इतनी चीजें पता भी नहीं चलती. So two of these beautiful girls, Surbhi and Shreya, दोनों ने ही, one of the members, she was on the downward spiral. थोड़ा टाइम कभी कभी ऐसा आ जाता है, एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि दोनों ने ही, सुरभि और श्रेया ने बहुत हेल्प करी उनकी और ऊपर उठने में, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि शायद एक जो मैं थॉट प्रोसेस लेके चली थी जब मिसेस दीवा शुरू किया था, व्हेन आई वाज कंसेप्चुअलाइजिंग, both my co-founder and I, we were thinking कि हम क्या concept लेके चलेंगे, because you guys know शुरू से ही मैं बहुत commercialize नहीं करना चाह रही थी इस चीज को, and we wanted कि हम एक support system की तरह लेके चलें, and major हमारा यही था कि हम इसको ऐसा ना रखें कि बहुत जो एक हर चीज में कमर्शियल एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई उससे हम थोड़ा साइड में रखना चाहते थे। और मुझे आप लोगों को देख के ये लगता है कि इट इज जस्ट दैट कि वो सिर्फ एक आइडिया जो है वो जर्मिनेशन की देरी थी, सिर्फ उसी की कमी थी, एंड पीपल हैव सो ब्यूटीफुली एक्सेप्टेड इट, व्हिच मींस कि आप लोग सभी already, you guys were, you had it in you all along, and I'm so happy to see how all of you are wonderfully supporting each other, and because I cannot be present everywhere, आप लोग ये सब कर रहे हो, beautifully कर रहे हो, एक दूसरे को support कर रहे हैं, I'm really really thankful to all of you, and especially Surbhi, Shreya, wonderful guys, wonderfully done, lovely. So okay, so we got deviated for a moment. आनंद पिक्चर का एक डायलॉग है ना, हम रंगमंच की पुतलियां हैं और ऊपर वाले की डोर, ऊपर वाले हमारी डोर ऊपर वाले की है, तो हम इस मिसेस दीवा की कठपुतलियां हैं और हमारी डोर आपके ऊपर है। नहीं ऊपर ही रहने देते हैं उसको। चलिए, okay. Now a very important question, Rakhi, and this is my second last question. Rakhi, what do you feel about your own growth in this beautiful journey? And this is the most important question for me as your business coach and as your coach. And do you feel somewhere this beautiful journey, this entrepreneurship, has this changed you as a person somewhere? So talk to me about this. Yes, absolutely. मैं एक बहुत चेंज पर्सन मैं अपने आप को सोचती हूँ। पहले शायद हो सकता है मैं अपने को मी माय मैन सेल्फ समझती थी शायद, पर मिसेस दीवा में ऐसा नहीं है। बहुत थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, बहुत हेल्पिंग का एक एटीट्यूड आया है, जैसे विनीशा करती हैं, जैसे श्रेया करती हैं,
और बहुत ज्यादा मतलब पूजा करती हैं, मतलब दे डू सेल्फलेसली एवरीथिंग, मतलब उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है। और ऐसी बहुत सारी लेडीज इस ग्रुप में आप हो, मतलब इतना, कई बार आप बीमार भी हो जाते हो तो भी आप कितना कुछ करते हो, इस ग्रुप को गो टू करते हो, कुछ ना कुछ नए थॉट लाते हो, कैसे हम इस ग्रुप को एक्टिव रखें, कैसे अच्छा करें। तो इन सब चीजें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत कुछ, मेरे को लगता है मैं शायद हर रोज कुछ ना कुछ इस ग्रुप में सीखती हूँ। तो आई एम लाइक टोटली डिफरेंट पीपल, और डिफरेंट एक कहते हैं, एक लेडी हूं मैं कि मोर हम्बल, कि कैसे हम्बल, कैसे आपकी तरह अच्छे से सॉफ्टली हमेशा स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, और कैसे लोगों से बात करना चाहिए। मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल एक कॉमन पर्सन थी, पर आपको देख के इंस्पायर हुए कि कैसे हमेशा लाइव जाते हुए हमेशा स्माइल होती है, कैसे आप लोगों से थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय करते हो, बाय करते हो। और सो मतलब सब कुछ आपसे ही सीखा है मैंने। सीरियसली सोशल मीडिया पे लाइव जाना, या लोगों से, एक क्लाइंट से या एक ऑडियंस को कैसे अपना बनाना है, वो आपसे ही सीखा है। वो सच्ची में वो कहीं और से नहीं सीखा मैंने, चाहे एसईओ करा, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग किया या कुछ भी किया, वो आपसे ही सीखा है। और मेरे ख्याल से बहुत सारी लेडीज हैं वो इस बात पे भी हाँ करेंगी कि आप ही उनकी इंस्पिरेशन है इस बात के लिए। Thank you so much. Thank you very much. But you know, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि डू यू फील दिस जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक जर्नी है। आप अभी बहुत समय से आप भी हो, ये सभी हम लोग शायद सभी ये चीज समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज रहती है, कि काम ही नहीं सिर्फ रहता, बहुत चीजें सीखते भी हैं डेफिनेटली। तो डू यू थिंक कि कुछ चेंजेस आपने अपने अंदर फील किए एज अ पर्सन, कि आप कुछ चीजें थी जो आपने नई सीखी, इस जर्नी से कुछ सीखा हो, अपने अंदर नेचर में कुछ आपने चेंजेस फील किए हो? नेचर में यही है कि आई एम मोर हम्बल, आई एम मोर लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स लेडीज। और अपने साथ, जो मैंने पहले भी बोला, कि मुझे लगता है कि मुझे अब आगे अकेले नहीं दौड़, मैं अकेले नहीं चल सकती। जो सबसे ज्यादा मोटिवेशन यही है, और जो मैंने सीखा है कि आप लोगों को साथ लेके आप चल सकते हो, आप अकेले कभी भी आगे नहीं। और मुझे ये लगता है कि सपने देखना एक बहुत जरूरी है, सपने सबको देखने चाहिए और उनसे हमेशा इंस्पायर्ड रहना चाहिए। और कुछ करने की ना चाहत रहनी चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे सीखनी है, तो वो जो चाहत है ना सीखने की, वो कभी भी नहीं मरनी चाहिए, चाहे आप 60 के हो, चाहे आप 40 के हो, चाहे आप 90 के हो, क्योंकि वो ही आपको इंस्पिरेशन देता है कि हाँ मुझे ये सीखना है, अभी मेरी जिंदगी में ये चीज रह गई है। अब वो चाहे आपको बच्चे की पालने की हो, हस्बैंड की सपोर्ट की हो, या इन लॉज की देखभाल, क्योंकि अगर इनकी भी चीज आपके अंदर चाहत नहीं होगी ना कि मुझे अपने बच्चों को अच्छे से पालना है या अपने इन लॉज की सेवा करनी है, तो जब तक आप ये नहीं चीज कर सकते, चाहत हर बेसिक छोटी चीज के पीछे ना आपकी चाहत है, आपका अपना मोटिवेशन है कि उसमें होना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो ही एब्सोल्युटली। आप अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो, नहीं तो मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। Wonderful, wonderful thought. यही मैं आपसे, this was the answer I was looking for. Lovely, lovely thought, Rakhi. Lovely thought. that we एक एक कुछ ना कुछ हमेशा चाह दिल में रहनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, होप कह लीजिए, कुछ तो चाहिए ही ना। लवली थॉट, होना चाहिए। वो शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि वो किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको मिटाने की कोशिश करता है, तो वो होता है कि अगर आप चाहो तो वो होता है। एंड बीइंग अ टैरो रीडर, बीइंग इन सच अ अकल्ट साइंस,
इवन वी थिंक कि अगर आप अच्छा सोचते हो, अगर आप वो चाह रखते हो ना, वो होता है, डेफिनेटली होता है। चाहे वो 2 दिन लगे या 2 साल लगे या 20 साल लगे, बट वो होगा ही होगा। Absolutely, absolutely. Power of positive thinking. Wonderful, wonderful. Okay. अब मेरा last question, guys, from Rakhi. Words of wisdom or learnings for rest of us. हम लोगों के साथ जो आपकी learnings हैं हमसे कुछ share कीजिए हमारे लिए, जो आपने अभी तक सीखा for us, जो कि हमें आपको लगता हो कि हमारे लिए हमें काम आएंगी वो. We should know. ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं किसी को सिखा नहीं सकती, बस नहीं, please. नहीं, मैं देखिए, मुझे जो चीज लगती है, मुझे ये लगता है कि हमें अपनी गुरु की सलाह माननी चाहिए। वो गुरु आस्था जैन भी हैं, वो गुरु भगवान भी हैं, वो गुरु टीचर भी है, और वो गुरु आपका हस्बैंड या आपके इन लॉज, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो हमें इंस्पिरेशन उनसे लेनी चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने डर में ही रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें वो डर के आगे जीत है वाला स्टेप जरूर उठाना चाहिए। चाहे लुढ़केंगे, गिरेंगे, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं ना, हम बच्चों को तो बहुत आसानी से समझाते हैं, नहीं बेटा उठो, खड़े हो, तुम्हें भागना है, तुम्हें दौड़ना है। पर ये चीज हम अपने लिए भूल जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज अपने आप को ना एक टेक इट फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। इवन मैं भी, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं या हम कर लेते हैं, पर ऐसा ना करें। अगर आप खुश हैं तो शायद आप सबको भी खुश रख सकते हैं। Absolutely, wonderful. See, इतनी इम्पोर्टेंट बात आप इतनी आसानी से कह जाते हो ना राखी. ये दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, यही मैं कह रही थी कि जो वर्ड्स ऑफ विजडम, यही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं. बहुत अच्छे से आपने हमें समझा दिया इतने छोटे से आसान से शब्दों में, एकदम से आप कह गए कि एक तो लीड बाय एग्जाम्पल, अपने खुद दूसरों को समझाते, खुद भी एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है. और आज शायद मेरे लिए ये सुनना बहुत जरूरी था, बिकॉज मैं आज मॉर्निंग से कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रही थी अपने वर्क को लेके. मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश सोच रही थी मैं करूं, और आई थिंक आई एम रेडी नाउ. थैंक यू सो मच आपकी वजह से. और यही लर्निंग्स है हमें. सीखते हैं, चाहे वो कोई भी. 100%, and it's very important also, knowledge sharing, knowledge जो है, knowledge के साथ हमेशा sharing ही लगता है. So it's very important. Thank you so much. So okay, so guys, thank you so much for staying with us. So I can see a lot of messages. Thank you so much. Pooja, yes, definitely I will check my WhatsApp. I know you have sent some messages. I'm sorry, I was just trying to coordinate with Rakhi. So मैंने इसलिए WhatsApp बंद कर दिया था. I will definitely check your messages. Thank you so much guys for staying with us, for encouraging both Rakhi and I. And I will let Rakhi say bye-bye to all of you before we exit the broadcast. Thank you so much, Astha Jain. You have make a fabulous group. I'm so lucky to have you as my coach. You always inspire me to be better than before. तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. So thank you so much, everyone. I'm glad you all are in my family. Thank you so much. I need your support. We need all our support. Definitely. Thank you so much, guys, and see you again next time. We will soon be announcing our next live session, and I guess next time we will be bringing some topic. I will definitely announce which topic I'll be covering next week. So we'll bring definitely a live session. This will be a learning live session, and we have okay. So we are with Rakhi. Let us announce. We'll be kickstarting our biggest contest from tomorrow, guys. So after within a few hours, I'm going to make an announcement in the group. Which contest are we going to announce? It will be the easiest contest, but it is going to be the biggest contest of the year in Mrs. Diva, and we have a lot of members who are pitching in.
and the amount of enthusiasm, guys, was so big that we had so many members that we had to break the contest into different phases. So, which means that we have a lot of gifts for all of you. So, we'll soon be making announcements for it. Thank you so much for staying with us, and bye bye, everyone. Take care. Thank you everyone. Thank you for joining.